Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class of vocabulary, Wortschatz. In this class we learn some new words as you can see here. So begin with the class. Dagegen unternehmen means to do, machen, to do something against. Like there is something happening that you don't like, you are against that thing, so you will do something against. Unternehmen, or we can say machen. Ich mache gegen etwas. Ich unternehme gegen etwas. So unternehmen is not a separable verb. First thing, it is a normal verb. Das ist kein trennbares Verb, right? It is a normal verb. Unternehmen. So ich unternehme gegen Gesetz. Ich unternehme gegen den Vertrag. So ich mache means I am doing against the contract. I am doing against the law and rule. I am against it. Ich unternehme gegen deine Meinung. I am doing something against your opinion. Means when I am against, मैं तुम्हारे से एग्री नहीं हूं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं. सो आई एम डूइंग अगेंस्ट समथिंग. unternehmen dagegen, right? dagegen unternehmen means machen. Okay, to do. Or we can also say dafür. If you are in favor, we can say dafür. If you are in favor, अगर आप फेवर में हो तो dafür, अगर आप अगेंस्ट में हो तो dagegen. Ich unternehme dagegen, ich unternehme dafür, right? Against or in favor. Next, Prüfung Angst or Stress haben. We'll deal these two words together. Prüfung Angst, डर. Angst means डर. Fear of Prüfung. Exam का डर, exam का phobia, fear. Prüfung Angst. Many people have exam phobia. बहुत से लोगों को एग्जाम का डर होता है. एग्जाम आता है तो उनमें डर बैठ जाता है. एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते और तैयारी अच्छी होती है तो भी खराब हो जाती है क्योंकि एग्जाम का डर होता है. बहुत ज्यादा डर होता है, टेंशन होती है और उसी से स्ट्रेस बनता है. स्ट्रेस, दे हैव स्ट्रेस. इन voraus स्ट्रेस, एडवांस में उनको स्ट्रेस हो जाता है. Ich habe stress im Voraus और ich hatte, I had stress in advance. Im Voraus means advance में. एडवांस में आपको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है. एग्जाम आने से पहले आपको स्ट्रेस हो जाता है. Prüfung Angst, ओके. fear of exam, एग्जाम का डर, एग्जाम का phobia बोलते हैं इंग्लिश में डर. किसी भी चीज से डर होता है. एग्जाम से डर है, भीड़ भाड़ से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ठीक है. ऊंची बिल्डिंग से डर लगता है तो phobia. तो सिमिलरली Prüfung Angst, एग्जाम से डर लगता है. Prüfung Angst, राइट. डी angst, आर्टिकल क्या angst का डी. डी angst. यहाँ पे स्ट्रेस का आर्टिकल क्या है? डेयर स्ट्रेस. लाइक मेनी पीपल हैव स्ट्रेस ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स. अलग अलग कारण से उनको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होना स्ट्रेस haben, राइट. डेयर स्ट्रेस. Ich habe einen Stress. hat स्ट्रेस, राइट. स्ट्रेस है उसको किसी भी रीजन से. और एडवांस में स्ट्रेस है. इन voraus मतलब सिचुएशन आने से पहले उनको डर लगने लग जाता है तो इन voraus स्ट्रेस haben. नेक्स्ट, Konzentrationsstörungen. देखिए दो वर्ड यहाँ पे, कंसंट्रेशन, ठीक है, और स्टोरमन, डिस्टर्बेंस. कंसंट्रेशन नहीं सही से कर पाते. काफी स्टूडेंट्स है, काफी लोग हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते एक काम पे. कहीं ना कहीं किसी चीज से उनका डिस्ट्रैक्शन होता रहता है. सो Konzentrationsstörungen डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस. तो स्टोरमन क्या है? डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है. कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट, फोकस करना, ठीक है. फोकस और कंसंट्रेशन करना है. तो फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता है, डिस्टर्बेंस होती तो स्टोरमन, ठीक है. ये स्टोरम क्या है? नाउन है. डी स्टोरम. प्लूरल भी डी होता है और सिंगुलर भी डी. स्टोरमन, राइट. ये सारे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से करनी है. अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम आ रही तो पुरानी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखना. सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में एक साथ दी हुई है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी. और in the May second week we are going to start our new online batches for A1, A2, B1, B2. Okay, link is given below for the registration and for details you can click on our website given below. Please website पे जाकर क्लिक करो और डिटेल सारी पढ़ लो. May second week से नए बैच स्टार्ट होंगे. A1, A2, B1, B2 लाइव क्लासेस with me in the evening. All batches will take place in the evening Indian time after 7 PM. All right. Next, ratsam means advisable. समथिंग इज एडवाइजेबल. कोई हमें एडवाइस देता है और जहां कोई हमें सजेशन अच्छा देता है, टिप्स देता है तो एडवाइजेबल. जैसे बोल सकते हैं das ist ratsam, इट इज एडवाइजेबल. empfehlenswert, एक और नया वर्ड होता है empfehlenswert, ठीक है, मतलब रिकमेंडेबल. समथिंग विच इज रिकमेंडेबल. आपको कोई चीज अच्छी लगी, आप दूसरे को एडवाइस देते हो. ratsam, लाइक das lernen ist ratsam. ओके, sport treiben ist ratsam. Radfahren ist empfehlenswert, ठीक है. ये रिकमेंडेबल है, ये एडवाइजेबल है, इसको आप भी फॉलो करो, ये अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये अच्छा है. Das ist gut, das habe ich gut gefallen, das finde ich gut. Okay, ich habe dabei viel profitiert, ich habe viel davon profitiert. मेरे को बहुत ज्यादा उससे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, एडवांटेज मिला, बेनिफिट हुआ. तो
इस श्लागे डियर फोर, इस राटे डियर, इस बेराटे डिश, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। यहां पे देखेंगे वर्ड्स कौन कौन सी है, बेराटन, राटन, फोरशलागन, ये सारी वर्ड्स हम सजेशन देने के लिए यूज करते हैं, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। राटन फोरशलागन दाटिव है, बेराटन आकुजाटिव है, ये सारे वर्ब्स हैं। और ये क्या है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा, राइट। इस तरह से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है परप्लेक्स। परप्लेक्स इंग्लिश की तरह परप्लेक्स मींस कंफ्यूज होना, बेविल्डर्ड होना, कंफ्यूज होना। जब आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कंफ्यूज होते हो, क्या करें, बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं हर एक चीज को लेकर, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी थीम के ऊपर आप कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, देन यू आर कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, ich bin perplexed, er ist perplexed, mein Freund ist perplexed। so sein वर्ब यूज आएगी, और sein वर्ब पे आपको is, am, are यूज करना है, राइट। ist और bist और sind, ये सारी वर्ब यूज कर सकते हो। er ist, du bist और sie sind और wir sind, ठीक है। is, am, are आप यूज कर सकते हो। तो परप्लेक्स मींस कंफ्यूज होना, किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, परप्लेक्स्ड इंग्लिश का वर्ड है परप्लेक्स, बेविल्डर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। सो यू हैव टू बी थिंक इट। नेक्स्ट, eine स्टडी साइट, स्टडी शो, स्टडी हुई है, सर्वे हुआ है, कहीं पे स्टडी की गई है, रिसर्चर्स ने और एक्सपर्ट्स ने कुछ सर्वे किया है, स्टडी की रिसर्च के उसके बाद कुछ रिजल्ट दिखाया, उन्होंने शो किया है। eine स्टडी साइट, स्टडी में ऐसा माना गया है, स्टडी में ऐसा मिला है, ऐसे एविडेंस मिले हैं, स्टडी में ऐसा आउटकम आया है, तो स्टडी साइट। द वर्ब साइगन मींस टू शो, स्टडी में ये दिखाया गया है, ठीक है, स्टडी ऐसा बताती है, स्टडी टॉक्स अबाउट इट, स्टडी टेल्स दिस, तो ये सब साइगन, eine स्टडी साइट। स्टडी आर्टिकल होगा डी स्टडी। बेट्रोफन, बेट्रोफन मींस अफेक्टेड पीपल, किसी भी चीज से कोई लोग अफेक्टेड है, ठीक है, कोई सिचुएशन से अफेक्टेड है, या कोई ऐसी कंडीशन हुई है जिससे किसी लोग को काफी हार्म हुआ है, लॉस हुआ है, तो उससे अफेक्टेड पीपल है, किसी डिसीज से सफर हुए लोग तो अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, किसी स्कैम में फंस गए तो उससे अफेक्टेड हुए, तो बेट्रोफन, दी बेट्रोफन, ये प्लूरल है, दी बेट्रोफन, तो अफेक्टेड पीपल, ठीक है, दोज हु हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू एनी रीजन बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन गिवन सर्कमस्टांस, बेट्रोफन, दी बेट्रोफन, दी अफेक्टेड पीपल हैव बीन आस्क्ड, दी बेट्रोफन वुडन gefragt, पासिव बना सकते हैं, दी अफेक्टेड पीपल have been asked, the betrothna, plural है, the betrothna, ठीक है, betrothn वर्ब है और उसी से betrothna, b कैपिटल, नाउन है, affected people, जो लोग इससे अफेक्ट हुए, जिन पे इसका प्रभाव पड़ा है, जिनसे इसको नुकसान हुआ है या किसी को बेनिफिट हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है अफेक्टेड पीपल, ठीक है, ऐसे लोग जो इससे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव लोगों कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव, तो अफेक्टेड पीपल, betrothna मेंशन, या सिंपल दी बेट्रोफन भी बोल सकते हो, मेंशन और लॉयल्टी लिखने की जरूरत नहीं है, जो लोग अफेक्टेड है। Ich bin zu Besuch, आप किसी के विजिट करने गए या आपके घर पे कोई विजिट करने आया, तो er ist zu Besuch, ich bin zu Besuch, ओके, तो ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो, आई एम विजिटिंग दैट पर्सन और ही दिस पर्सन विजिट्स मी, तो बेजूक हियर इज ए नाउन, देयर बेजूक, ठीक है, और वैसे वर्ब होती है बेजूखन, तो वैसे सेंटेंस बनेगा ich besuche, ich besuche, ich besuche sie, ich besuche dich, और यहां पे होगा ich bin zu Besuch, दोनों का मतलब सेम है, I visit you या I am going to visit, और here I am here to visit, तो ich bin zu Besuch, er ist zu Besuch। अच्छे स्ट्रक्चर से इस तरह से आपको याद करना, यही आपके वोकैबुलरी, यही आपके नए नए स्ट्रक्चर्स है, फॉर्मेशन है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, अपग्रेड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर की, वेदर कंडीशन, द स्वेटर ब्लाइट, the weather stay, like in coming days weather state like this, the sweater blight heiß, the sweater blight kalt, okay, the sweater blight sonnisch, और in kommenden Tagen, in coming days, आगे मैं कंप्लीट कर रहा हूं सेंटेंस को, in kommenden Tagen, ठीक है, in coming days वेदर कैसा रहेगा, वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, वेदर आगे वाले दिनों में कैसा रहेगा, सनी रहेगा, हॉट रहेगा, कोल्ड रहेगा, स्टॉर्मिश रहेगा, ठीक है, किस तरह का वेदर रहेगा, इन kommenden Tagen, in kommenden Wochen, das Wetter bleibt, the weather stay like this, sunny, cold in coming days, coming weeks, so ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करना। और लास्ट में the temperature leaked, the temperature is, the temperature leaked by any, you can write here up to 30 grad, इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा, और the temperature leaked über
यूबर इन डुशनिट मतलब टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा रहेगा, यूबर इन डुशनिट, डुशनिट आई थिंक स्पेलिंग देख लेना सही होगी, डुशनिट एवरेज, यूबर डुशनिट या द टेम्परेचर लीक्ड यूबर डुशनिट, ठीक है, द टेम्परेचर लीक्ड बाय 38 ग्राड, अगर टेम्परेचर लिखना है तो बाय पे खत्म करोगे और नहीं लिखना है तो बाय हटा दोगे, द टेम्परेचर लीक्ड यूबर डुशनिट, यूबर 33 ग्राड, ठीक है, यूबर 20 ग्राड, टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर रहेगा, 30 डिग्री से ऊपर रहेगा या टेम्परेचर 38 डिग्री रहेगा तो लीक्ड बाय, तो ये स्ट्रक्चर टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं। टेम्परेचर जब हमें बताना है, द टेम्परेचर, आर्टिकल है डी टेम्परेचर, ये आपको याद रहेगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना सेशन को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हाउ विटर से।